Good morning, my dear student. Today we are going to start class 12th history chapter Sufi Bhakti tradition. In this chapter, we have read the various Bhakti sects, Sagun Bhakti and Nirgun Bhakti, with tributes and without tributes. Without tributes, Bhakti saints, the name Kabir was very prominent. Today we will discuss about Bhakti saints like Kabir, like Nanak and Mirabai. We will also read about Shankar Dev, who played a very important role in Bhakti in the eastern region of India. So let's start. The first Bhakti saint, Kabir. Kabir, if we take the name of Kabir, then a points which come in our mind that Kabir was a very mystic poet. Kabir was fully illiterate. He never went to school, but their knowledge that was very vast. Their experience is based of the social knowledge. सामाजिक ज्ञान पे कबीरदास की पूरा अनुभव उस पर डिपेंड। कबीरदास जी ने अपनी शिक्षा के लिए कभी भी स्कूल वो नहीं है। कबीरदास की टीचर, स्पिरिचुअल टीचर रामानंद का नाम आता है। कबीरदास जी वाराणसी के लहतारा में 1440 के आसपास पैदा हुए। He was born in 1440 in Lahartara, Varanasi. When he was born, अप्रोपोस एक कहावत है कि वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए और विधवा ब्राह्मणी ने उन्हें लोक लाज के कारण फेंक दिया। फिर they were nurtured by the Muslim family. Their name was Niru and Nima. They were weavers. So that's why Kabirdas started occupations as a weavers. वो बुनकर के रूप में अपने जीवन शुरू किए। लेकिन अपने जीवन के दौरान कबीरदास जी ने सामाजिक कुरीतियों पे चोट की। कबीरदास की लैंग्वेज folk language थी। I have already discussed in the previous video that Sufi saint, Bhakti saint, everyone uses their folk languages. Why? Because this is the very easy to understand the common people. Kabirdas was mystic poet also. कबीरदास की कुछ चीजों को I will explain, I will discuss here. But before, we have to understand about the life of Kabir. Kabirdas, 1400, 1480, Varanasi. He was born. His life was नियर अबाउट 100 ईयर, 100 साल की जिंदगी उन्होंने जी। 1518 में उनकी मृत्यु मगहर में हुई। कबीरदास 15th सेंचुरी संतों में काफी महत्वपूर्ण स्थान इनका रखा जाता है। इनके दो पुत्र हुए, कमाल और कमाली, जिन्होंने कबीर के गृहस्थ जीवन को प्रॉपरली एक्सप्रेस किया। कबीरदास की शादी हुई, फिर कबीरदास ने अपने जीवन को, लेकिन कबीरदास प्रॉपरली लाइफ में रहते हुए भी एक भक्ति सेंट के रूप में अपनी एक स्थान बनाई। भक्ति ट्रेडिशन में कबीरदास ने उन चीजों को फुल्ली एक्सप्लेन किया। तो आप इंग्लिश समझ सकते हैं। बॉर्न वाराणसी 1440, डेथ मगहर, संत कबीर नगर। नाउ दैट टाइम मगहर सिचुएटेड इन संत कबीर नगर इन 1518 AD। टीचर्स रामानंद, डिसाइपल दादू एंड मलुक दास। उनके दो शिष्य जो बड़े फेमस हुए, उनके नाम है दादू और मलुक दास। कबीरदास की रचनाएं, कबीरदास के शिष्यों ने कबीरदास के सरमन्स को, उनके उपदेशों को दो ग्रंथों में, बीजक और कबीर वाणी में संकलित किया। कबीर की वाणी तीन विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। ये
वाराणसी या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के क्षेत्रों में बीजक में इनकी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। कबीरदास जी ने इन चीजों के बारे में अपने ग्रंथ में, अपने उपदेशों में जो बातें कही, वो समाज को क्रिटिसाइज कर रही थी, समाज के ऊपर एक तरीके से चोट थी। कबीर, द 14th-15th century is perhaps one of the most outstanding example of the poet saint who emerged within this context. Historians have painstakingly tried to reconstruct his life. It is painful for the historians to understand their life because there are so many contradictions in Kabir's life. As I tell you कि उन्होंने ब्राह्मण विधवा के गर्भ से पैदा हुए और वो फिर नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति के द्वारा नर्चर्ड किए गए, पाले पोसे गए। His life and times through the study to composition attribute to him as well as the later the hagiography. Such an exercise have period to be challenged on a number of counts. Verses ascribed to Kabir have been compiled in three distinct but overlapping traditions. The Kabir Bijak is preserved by Kabir Panth, the path of sect of Kabir in Varanasi and elsewhere in Uttar Pradesh. The Kabir Granthali is associated with the Dadu Panth in Rajasthan. Kabir Granthali associated with Dadu Panth in Rajasthan. That is the very important thing. कबीर की उपदेश हर भाषाओं में प्रचलित थे। कबीर ने हर जगह अपनी बातों को रखा। कबीर के ग्रंथों से इन चीजों के बारे में, कबीर की लाइफ के बारे में, कबीर के लाइफ से ज्यादा कबीर की टीचिंग के बारे में उनके ग्रंथों में शामिल किया। कबीर के जो उपदेश थे वो हिंदू मुस्लिम एकता को एक्सप्रेस करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने पे बल देते थे। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे। उन्होंने भगवान के किसी भी स्वरूप पे विश्वास नहीं किया। निर्गुण, निराकार, विदाउट एट्रीब्यूट्स, they believe that God has no shape and size, but they also take the name राम, इस तरीके के नाम को वो अपने उपदेशों में बार बार लिया करते थे। कबीरदास जी ने इन चीजों को बड़े ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। कबीरदास जी ने अवतारवाद का विरोध किया। 17th सेंचुरी में मिरातुल असर में कबीर को फिरदौसी सूफी कहा गया है एंड अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद या इक्कीसवादी कहा है। अबुल फजल कबीर को मुवाहिद कहते हैं और जो टेक्स्ट का नाम मैंने कहा फिरदौसिया सूफी के मिरातुल असर बुक में कबीर को सूफी सेंट कहा गया। It is no doubt to say that Kabir was very famous in Hindu and Muslim both. दोनों धर्मों के लोगों ने कबीर को बराबर सम्मान दिया। कबीर की मृत्यु के बाद बघार में जब कबीरदास जी थे तो वहां पे ऐसी एक मान्यता है कि मृत्यु के बाद जब हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे तो कबीर के डेड बॉडी के ऊपर जो चादर थी उसके नीचे से डेड बॉडी गायब हुई। दो फूल बचे, एक फूल को हिंदुओं ने मंदिर बनाया और दूसरे फूल पे मुस्लिमों ने अपने मकबरे का निर्माण कराया। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी कबीर के बारे में। कबीर ने जिन चीजों पे विशेष ध्यान दिया
वो हिंदू मुस्लिम के समन्वय के रूप में इंटीग्रेशन ऑफ द हिंदू मुस्लिम कल्ट, हिंदू मुस्लिम रिलीजन, उन्होंने साकी, सबद और रमैनी तीन चीजों के माध्यम से अपने विचारों को जनता तक पहुंचाए। इनके ग्रंथ उनके शिष्य रामदास ने संकलित किया बीजक के रूप में। बीजक को लिखने का काम रामदास ने किया और कबीर वाणी को दादू ने इनको लिखने का प्रयास किया, इनकी विचारधाराओं को दूर तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे कुछ चीजों पे विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा जो क्लियरली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में बार बार एक चीज पूछती है कि टीचिंग ऑफ कबीर, कबीर की टीचिंग्स क्या है। इसके बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए। तो सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग के पहले आपको कबीर की रचनाएं और उनकी भाषाओं के बारे में जानना पड़ेगा। कबीर ने अनेक रचनाएं अनेक भाषाओं में संकलित कराई गई उनकी भाषाएं। कबीरदास जी को बार बार कहा गया कबीर पोएम्स हैव सर्वाइव्ड द सेवरल लैंग्वेजेस एंड dialects and some and composed in the special language of the Nirgun poets. The Sant Bhasha, other known as the Ulat Bani. उलट बानी इट मीन्स अपसाइड डाउन सेइंग। जब कबीरदास जी कहते हैं कि केवल जू फुल्या फूल बिन, एक ऐसा फल जो बिना फूल के ही बन गया, या वो कहते हैं समंदर में लागी आग, या वो कहते हैं कि उपदेश देते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। सो दैट्स व्हाई कबीर कॉल्ड द मिस्टिक पोएट। इसीलिए कबीर को मिस्टिक पोएट कहा जाता है। कंबल को बरसने और पानी को भीगने की बात कह रहे हैं, बिना फूल के ही फल लगने की बात कर रहे हैं, समंदर में आग लग जाने की बात कर रहे हैं। इसके माध्यम से वो ये बात बताना चाहते हैं, समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सामाजिकता को समझने के लिए कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, समाज में उन चीजों को समझने के लिए उन्होंने व्यंग के रूप में बातों को उलट के कहा। इसीलिए उनकी चीजों को उलट भाषा या उल्टी बानी में कहा। कबीरदास जी कबीर द मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस that clearly explained in his statement, which I explained थोड़ी देर पहले हमने जिन चीजों पे बात की। Also sticking is the range of the traditions Kabir drew and the describe the ultimate the reality. These include Islam. He described the ultimate reality as Allah, Khuda, Hazrat and Peer. He also used terms drawn from the Vedantic traditions Alakh, unseen, Nirankar, formless, Brahma, Atman, etc. These type of word Kabir used in their sermons. वो एक तरफ मुस्लिमों या मुस्लिम इस्लाम से वो एकेश्वरवाद की संकल्पना पे विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने अलख, ब्रह्म, आत्मा जैसी बातें करके उन्होंने ब्रह्म को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, ब्रह्म को बार बार बताने का प्रयास किया। द अलख, आत्मन, other terms with a mystical connection such as the शब्द, sound or शून्य were drawn from the yogic traditions. Diverses and the sometimes the conflicting the ideas were the expressed in these poems. Some poems drew on the Islamic ideas and uses the monotheism and icons Islam
to attack Hindu polytheists and idol worship. Others use the Sufi concept of zikr and ishq, love of express. The Hindu practices of the Naam Simran, पूजा पद्धतियों के बारे में कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रॉपरली क्रिटिसाइज किया। कबीरदास जी हिंदुओं को क्रिटिसाइज करते कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि ऊंचा की भली पीस खाए संसार। और मुस्लिमों को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला के घर बेटी ब्याह, घर में करे सगाई। तो इस तरीके से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पे चोट की। He opposed all type of social evils which is practiced in the Hindu as well as Muslim society. Without any hesitation, he straightforward questioned on that criticism. उन्होंने उन चीजों पर क्वेश्चन किया। उन्होंने भगवान, उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। इतिहासकारों का मानना है कि रामानंद और कबीर में समानता नहीं रखी जा सकती, एक साथ उनको नहीं लाया जा सकता, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है। कबीरदास की अगर लंबी लाइफ को माना जाए तभी रामानंद के साथ उनके इंटेक्शन को समझा जा सकता है। बहरहाल अधिकांशतः इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि रामानंद ही कबीर के गुरु थे। कबीरदास जी ने कुछ चीजों पर विशेष ध्यान दिया। कबीरदास जी ने इन विरोधात्मक पक्षों पे, समाज के उन चीजों पे चोट करने का प्रयास किया जो सोसाइटी को, जो समाज को डाइवर्ट करके एक नई दिशा दे रहे थे, गलत दिशा की तरफ ले जा रहे थे। सोशल रिफॉर्मर के रूप में कबीर का योगदान भक्ति सेंटों में सबसे यूनिक और बड़ा है। कबीरदास जी के टीचिंग्स उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, जो धार्मिक, सामाजिक या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस उनके आइडियोलॉजी पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं, जो सोशल इविल पे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कबीरदास एक रोल मॉडल्स है। कबीरदास की टीचिंग्स समाज सुधार के लिए इंपॉर्टेंट है। कबीर के विचार संभवतः उत्तर प्रदेश के सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवादों के माध्यम से कनीभूत हुए। कबीर की जो विरासत थी, अनेक गुटों ने उस पर अपना दावा किया। यह भी बात उजागर हुई कि कबीरदास ने जिन विषयों पे प्रश्न किया, जिन चीजों पे बातें की, वो चीजें सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल थी, सोशल इविल के प्रति चोट थी। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का मीनिंग होता है महान। जन्म से कबीर को इसलिए हिंदू कहा गया, लेकिन कबीर हिंदू थे या कबीर मुस्लिम थे, दैट इज नॉट मैटर। मैटर इज दैट कबीर एज ए ग्रेट टीचर इन द भक्ति ट्रेडिशन। कबीर के टीचिंग्स समाज के लिए, समाज की कुरीतियों के लिए एक लेसन है। कबीरदास जी की रचनाओं को ध्यान दीजिए। कबीरदास की कई सारी वाणियां, गुरु वाणियों पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कबीरदास की कितनी बात की। कबीरदास की टीचिंग्स जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें उन्होंने बार बार गुरु और सतगुरु का उल्लेख किया है। कबीरदास जी बार बार इन बातों पे ध्यान देते हैं, इन बातों को कहते हैं कि ये गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। गुरु की इंपॉर्टेंस को कबीरदास जी ने हमेशा महत्ता दी। However, the one attributed to Kabir used the word Guru and Satguru, but do not mention
the name of any specific perceptors. Historians have points out that it is a very difficult to establish that Ramananda and Kabir were contemporary without assigning improbably long life to either or both. So while tradition linking the two cannot to be accepted at face value, they show how to important the legacy of Kabir was larger generation. कबीर दास रामानंद के साथ जो इंटरकनेक्शन थी उसमें इतिहासकारों में विवाद है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इस तरीके से कबीर ने समाज के लिए सामाजिक कुरीतियों पर जो चोट किए वो आज भी स्थापित हैं. कबीर पंथ के नाम से कबीर मत के लोग हैं. इफ यू आर so curious to know about that Kabir, then you should go Lahartara and you should also go where आपको विजिट करनी चाहिए. You should visit particular place, the Kabir Math. Both places situated in the Varanasi. It is not so far, बहुत दूर नहीं है, ये प्रॉपर नजदीक है. You should go there and you can easily understand the teaching of Kabir, life of Kabir, and meaning of Kabir. Okay, the next end we will start, that is Nanak, Guru Nanak. Guru Nanak (1469 to 1500), I think 39. तलवंडी, पंजाब, रावी रिवर, गुरु नानक. गुरु नानक जी का जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी में हुआ, एक हिंदू खत्री फैमिली में. बाबा गुरु नानक was born in Hindu merchant family in a village called Nankana Sahib near the river Ravi. The predominantly the Muslim Punjab. He trained to be an accountant and studied the Persian. He was married at young age, but he spent most of his time among Sufi and Bhakti saints. He also traveled widely. इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने भारत की 4 बार पूरी भारत की यात्रा की. ये श्रीलंका भी गए. इन्होंने मक्का और मदीने तक की यात्राएं की. इनकी यात्राओं को सिख धर्म में रायदासी का रायदासिया कहा जाता है. कबीर नानक ने इतने लंबे क्षेत्र का दौरा किया. हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक बने. इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को उन्होंने कहा ना मैं हिंदू हूं और ना मैं मुस्लिम हूं. उन्होंने दोनों धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने की बात की, यूनिटी की बात की. ये भी विदाउट एट्रीब्यूट्स गॉड में बिलीव करते थे. इन्होंने गॉड को रब कहा. गुरु नानक देव का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ. जन्म इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब के ननकाना साहिब के गांव रावी नदी के जो पास था वहां उनका जन्म हुआ. उन्होंने फारसी पढ़ी और अकाउंटेंट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया. छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई और फिर इनका गृहस्थ जीवन में काफी मन नहीं लगा, लेकिन अपने ज्यादा टाइम को ये सूफी सेंट्स के साथ, भक्ति सेंट्स के साथ खर्च करते थे. बाबा गुरु नानक की जो टीचिंग्स है, मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक
It is spelled out in his hymns and teachings. This suggests that he advocated a form of the Nirgun Bhakti. Finally, they are reputed in the external practices of the religions. He saw around him his rejected sacrifices, ritual baths, image worship, and the spectacles of the birth Hindu and Muslims. For Baba Guru Nanak, the absolute or Rab had a gender or form. Absolute and Rab had no gender or form. He proposed a simple way to connect to the divine by the remembering, the repeating the divine name, expressing his ideas through hymns called Sabad in Punjabi. The language of the region, Baba Guru Nanak would sign these compositions in the Varanasi rag while his attendant, the Mardana, played the rag. Baba Guru Nanak organized his followers into the community. He set up rules for the congratulations worship Sangat involving collective reaction. He appointed one of his disciples Angad and successed the property of the Guru and his practices to followed up the near 200. गुरु परंपरा 200 वर्षों तक चली। गुरु नानक जी का जन्म मैंने आपको बताया कि ननकाना साहब में हुआ। गुरु नानक जी हिंदू परिवार में पैदा हुए। गुरु नानक जी ने अकाउंटेंट का काम सीखा और गुरु नानक जी सिकंदर लोधी के शासनकाल में अकाउंटेंट के रूप में कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन उनका मन नहीं लगा। गुरु नानक जी ने सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, जाति प्रथा, रिचुअल बाथ्स, सैक्रिफाइसेस, कास्टिसिज्म, जेंडर सुपरियरिटी बिहाफ ऑफ द बर्थ, इन सारी चीजों पे नानक जी ने चोट किया। गुरु नानक कोई नया धर्म नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन बाद में गुरु परंपरा स्थापित हुई, उनके सक्सेसर अंगद और फिर 10 गुरुओं की परंपरा हमें सिख धर्म में दिखाई देती है। सिख धर्म में जो उनका सबसे महत्वपूर्ण है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें सूफी संतों की गुरुबानियां संकलित कराई गई, जिनमें कंटेम्प्ररी सभी जो सूफी सेंट्स थे, भक्ति सेंट्स थे, सभी के उपदेश संकलित है। लाइक कबीर, लाइक रैदास, नानक एंड मुस्लिम सेंट्स आल्सो। सूफी संतों में कई सारे मुस्लिम सूफी संतों के उपदेश गुरु ग्रंथ साहब, आदि ग्रंथ साहब में संकलित है, बाबा फरीद के स्पेशली। तो गुरु ग्रंथ साहिब में उन सब की बातों को, अच्छी बातों को उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड एंड वी हैव टू फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट दैट गॉड इज इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी. It should not be because everyone made by God. God is equal for all. There is no need for any type of extreme practices in society. Nanak Dev Ji Maharaj clearly expressed about that. He want to unite the Hindu Muslims. He believed that neither I Hindu nor I Muslims. न मैं हिंदू हूं न मैं मुस्लिम हूं, हम मेरे अंदर दोनों चीजें हैं। और फिर नानक देव जी ने इन चीजों को प्रॉपरली निर्गुण भक्ति शाखा के माध्यम से अपनी बातों को दूर कर, उन्होंने अपने गॉड को रब कहा। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए समुदाय की गठन की बात नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु नानक देव जी कोई नया काम नहीं करना चाह रहे थे धर्म के नाम पे, लेकिन बाद में गुरु परंपरा स्थापित हुई और गुरुबानी के रूप में उनके उपदेशों को, उनके समकालीन उनके उपदेशों को संकलित किया गया। इस तरीके से नानक देव जी ने भी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत निर्गुण भक्ति शाखा भक्ति सेंट में एक महान नाम के रूप में स्थापित हुए।
नेक्स्ट सूफी सेंट्स हैं हमारे मीराबाई। मीराबाई लगभग 15-16 सेंचुरी में मारवाड़ की मेड़ता की राजकुमारी थी। इनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोज, महाराजा भोज से हुई। खानवा के युद्ध में भोज की मृत्यु हो गई। जल्दी ही मीराबाई विडो हो गई। मीराबाई ने अपना सब कुछ ईश्वर भक्ति में लीन कर दिया। कृष्ण की भक्ति में ये इस कदर लीन हुई कि इन्हें किसी भी चीज की सुध न रही। इन्हें राजमहल छोड़ना पड़ा और भक्ति में इन्होंने एक चरम पद को प्राप्त किया। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई रैदास की शिष्य थी। रैदास और रविदास। रैदास he was belongs to the lower class and Mirabai belongs to the upper class. I mean to say the Chatrani. And आप इस देख सकते हैं कि भक्ति में, इस परंपरा में there is no meaning of caste. The spiritual teaching is very important for them. ये धर्म, चीजें सिर्फ उन्हीं के लिए थी, कुछ लोगों के लिए थी जो इन रिचुअल एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस में फंसे हुए हैं। मीराबाई लगभग 14-15 सेंचुरी में भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री है। उनके जीवन उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई, जो कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से गाए जाते रहे हैं। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता की एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया सिसोदिया कुल में। पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के दायित्वों को उन्होंने निभाने से इनकार कर दिया। वो एक भक्ति सेंट के रूप में दिन भर कृष्ण भक्ति में, साधना में लीन रहती थी और ये चीजें उनके परिवार को अच्छी नहीं लगती थी। द कृष्ण, द अवतार ऑफ विष्णु, एज ही लव हर इन लॉ tried to poison her, but she escaped from the palace to live as a wandering singer, composing songs that characterized by the intense experience of the emotions. मीराबाई के मीराबाई की जो बातें थी वो अपने में यूनिक थी। राज परिवार के लोगों को उनकी ये चीजें पसंद नहीं आई। उन्हें जहर दिया गया, पॉइजन दिया गया, लेकिन जल्दी उन्होंने महल छोड़ दी और वो कृष्ण भक्ति शाखा में अपने को लीन कर दी। कुछ भक्ति ट्रेडिशंस में ऐसी मान्यता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस, हर preceptor was Raidas, leather worker. This would indicate her defense of the norms of the caste society after rejecting the comforts of her husbands and place. She is widow, saffron robes, and the announcer. इस प्रकार मीराबाई आसपास के न्याय जब वो गाती थी तो उनके साथ काफी लोग जुड़ जाते थे। भक्ति में उन्होंने चरम पद को प्राप्त किया। भक्ति सेंट के रूप में वो प्रसिद्ध हुई। इतिहास में उनके नाम जोड़ाक्षर बन गए। उन्होंने भी समाज में फैली हुई सोशल इविल्स पे चोट की। उन्होंने भी गॉड के इंस्ट्रक्शंस के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता को अस्वीकार किया। विद द फुल ऑफ डिवोशन, लव, डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड यू कैन अटेन इट। भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। मीराबाई ने ये उपदेश दिया। एक और सेंट है जिनके बारे में चर्चा कर लें, शंकरदेव। शंकरदेव इस आसाम में फेमस थे। आसाम में शंकरदेव का नाम बड़े ही श्रद्धा से लिया जाता है। इन्होंने भगवती संप्रदाय की स्थापना की। वैष्णविज्म के फॉलोअर्स थे।
लेकिन शंकरदेव आसाम में विष्णु के इडोल वर्शिपर नहीं थे। ये भगवान विष्णु के निराकार ब्रह्मा, आई मीन टू से दैट विदाउट एट्रीब्यूट्स स्वरूप की उपासना करते थे। इन्होंने 15th सेंचुरी के आसपास असम में वैष्णव धर्म की मुख्य संप्रदाय के रूप में प्रचारित किया। भगवत गीता, भागवत पुराण पर इनके टीचिंग्स बेस्ड थे। इन्होंने शंकरदेव ने भक्ति के लिए कीर्तन और श्रद्धावन भक्तों के सत्संग से ईश्वर के नाम और उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए मठ, नामघर जैसे प्रार्थनाओं घर की स्थापना की। उन्होंने कई सारे श्राइन स्थापित किए, मठ स्थापित किए, और उनकी जो रचनाएं थी वो कीर्तन घोष के रूप में संकलित हमें प्राप्त होती है। उन्होंने जिन बातों को कहा कीर्तन घोष के रूप में संकलित हमें मिलती हैं वो। इसके अलावा कुछ और वर्ड हैं, जैसे सूफी ट्रेडिशंस में इन चीजों को भी देख लीजिएगा। आई थिंक पेज नंबर लास्ट पेज पे है 165, जहां पे आपको मिलेगा मलफूजात, मकतूबात और तजाकिरा। तजाकिरा सूफी संतों की जीवनियां हैं। मकतूबात लिखे हुए उनके जो लेटर्स हैं सूफी सेंट्स के, और मकतूबात सूफी संतों के बातचीत पे डिपेंड। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देखें। और आज आपके लिए चैप्टर सूफी भक्ति ट्रेडिशन। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पीरियड में यू विल रीड अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, इट इज फिजन अगेन। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।